আমাদের পরের গন্তব্য হলো পঞ্চচল্লী বেস ক্যাম্প। আমরা কলকাতা থেকে দিল্লি, সেখান থেকে ট্রেনে কাঠগুদাম, সেখান থেকে আমরা অ্যাবাউট মাউন্টে থেকে ধারচুলা পৌঁছালাম। ধারচুলা হলো একটি ছোট শহর কালী নদীর ধারে, একদিকে নেপাল অন্যদিকে ভারত। ধারচুলায় KMBM এর হোটেলে একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা চলে গেলাম নেপালে। নেপালের বাজার থেকে সন্ধ্যা নামার আগেও চলে এলাম ভারতে। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে নতুন বোলেরো ধরে বেরিয়ে পড়লাম পঞ্চচল্লী বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। ধারচুলা থেকে কালী নদীকে কখনো ডান পাশে কখনো বাম পাশে রেখে এগোতে থাকলাম। সামনে এলো তাওয়াঘাটের ব্রিজ, সেখান থেকে আদি কৈলাসের দিকে যাওয়া যায়। আমরা বাঁ দিকে রাস্তায় ঢুকে গেলাম। কিছুটা যাওয়ার পরে রাস্তা একটা গ্রামে এসে দাঁড়ালো। সেখানে গরম ভাত আর আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে খাওয়া হলো, সঙ্গে ছিল মুসুরির ডাল। খাবার শেষে সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরা আবার এগিয়ে চললাম। রাস্তার অবস্থা ততটা ভালো নয়, তবে রাস্তার কাজ চলছে। কিছুটা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, বরফ গলা জলের উপর দিয়ে কখনো গাড়ি যাচ্ছে, কখনো বা এবড়ো খেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে। রাস্তায় আরেকবার দাঁড়ালাম একটা সুন্দর ঝর্ণা দেখার জন্য। ঝর্ণা বলা ঠিক হবে না, তবে একটা জলরাশি পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে। সেটা খানিকক্ষণ দেখে আবার আমরা চললাম আমাদের বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। দান্তু ভিলেজে আমরা যাব, সেখানে আমরা ছিলাম হিমালয়ান ব্লু শিপে। পরদিন ভোরবেলা থেকেই আমরা রেডি সূর্যোদয় দেখার জন্য। আকাশে মেঘ ছিল। প্রথমে 5টার সময় আমরা উঠে ভাবলাম যে আজকে বোধহয় দেখা যাবে না, কিন্তু 5:15 থেকে আস্তে আস্তে মেঘ সরে গেল এবং আমাদের সামনে উদয় হলো পঞ্চচল্লীর এক স্বর্গীয় রূপ, সূর্যোদয়ের ছবি। 5টা শৃঙ্গই সোনালি আলোয় ভরে গেল এবং যত ভোর হচ্ছে, সময় গড়াচ্ছে, তত আমাদের সামনে সোনালি আলোটা আস্তে 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 পুরো পঞ্চচল্লী পাহাড়কে ঘিরে ফেললো এবং আস্তে 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 ভোর হতে শুরু করলো। গ্রামে তখনও সূর্যের আলো পৌঁছায়নি। দান্তু ভিলেজের গ্রামে আস্তে আস্তে সূর্য আলো পৌঁছাতে শুরু করলো আর পঞ্চচল্লীর রং সোনালি থেকে আস্তে আস্তে সাদা হয়ে গেল।
সূর্যোদয় তো দেখা হয়ে গেল। এবার আমরা ঠিক করেছি ব্রেকফাস্ট করে পঞ্চচুল্লি 0 পয়েন্টের দিকে যাব ট্রেক করে। আমাদের সারথি সঞ্জয়কে বা গাইড সঞ্জয়কে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম 0 পয়েন্টে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমাদের যে হোমস্টে ছিল হিমালয়ান ব্লু শিপ, সেখান থেকে গ্রামের দিকে খানিকটা যেতে হয়, ওই 700 মিটারের মতো গাড়ি করে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেখান থেকে আমাদের হাঁটা শুরু হলো। আমরা উপরের দিকে উঠতে শুরু করলাম। এইখানের যে ট্রেকটা আছে সেটা ইজি টু মডারেট ট্রেক, কেননা যেটা ইজি ট্রেক সেটা হচ্ছে নিচের ট্রেলটা, যেটা দিয়ে আপনারা ইগলু হাটের সামনে দিয়ে বেস ক্যাম্পে পৌঁছাবেন। কিন্তু আমরা নিয়েছিলাম পঞ্চচুল্লি বেস ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য উপরের ট্রেকটা, যেটার উপর দিয়ে আপনি ওই রডোডেন্ড্রনের বন, তারপরে আপনার ঝাউবন, তারপরে গাছপালার মধ্যে দিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে উপরের ট্রেলটা ধরে ধীরে ধীরে পৌঁছাবেন এবং নিচের দিকে নামলে তখন আপনি 0 পয়েন্টে পৌঁছাবেন। তো এই ট্রেলটা অনেক বেশি উপভোগ্য। সাধারণ লোকেরা এই ট্রেলটা নেয় না, আর এই ট্রেলটা নেওয়ার জন্য আমি বলবো সবসময় গাইড নেওয়া উচিত। আমাদের গাইড ছিল সঞ্জয়। সঞ্জয়ের সাথেই আমরা এই ট্রেকটাকে ওইভাবেই আমরা কমপ্লিট করেছি। তো আমরা ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছি, এক অসাধারণ এক দৃশ্য। আমরা এখন পৌঁছে গেছি সেই জাংশন পয়েন্টে। এখান থেকে ট্রেলটা দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে যাচ্ছে, একটা নিচের দিকে রাস্তা আর একটা উপরের দিকে যাওয়ার রাস্তা। এখানে বোর্ড দেওয়া রয়েছে। সাধারণত বেশিরভাগ লোকই নিচের দিকে রাস্তাটা ধরেন। এই রাস্তাটা স্ট্রেট, এখানে আর চড়াই নেই।
মোটামুটি সোজা রাস্তা পৌঁছে গেছে ইগলু হাট অবধি। সেখান থেকে একটু নিচের দিকে নামলেই আপনারা বেস ক্যাম্পের দিকে যেতে পারবেন। কিন্তু আমরা নিয়েছিলাম উপরের রাস্তাটা, যেটা দিয়ে আমরা ধীরে 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 উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছিলাম। এবং এই উপরের রাস্তাটা, ট্রেলটা প্রায় 6 কিলোমিটার মতো চড়াই উঠতে হয়, আর তারপরে নর্মাল ফ্ল্যাট রোড, আর তারপরে নিচের দিকে নামো। আমরা এবার পৌঁছে গেছিলাম দুজুলির জঙ্গলের রাস্তার মধ্যে, যেখানে ঝাউবন ঘেরা রাস্তা, অনেকটা ছায়া রয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের হেঁটে চলে যেতে হবে। তো জায়গাটা বেশ সুন্দর এখান থেকে, এবং সেটার মধ্যে দিয়ে আমরা যাওয়া শুরু করেছিলাম। আমরা এখন পৌঁছে গেছি টপে, পাহাড় টপে। এখানে একদিকে যেমন জঙ্গল, ঝাউবনের জঙ্গল রয়েছে, তার মাঝখানটা হচ্ছে টপ। এরপরেও আমাদের খানিকটা আরও উঠতে হবে, তবে এই টপটা একটা বুগিয়ালের মতো। সেখান থেকে আমরা আরেকটু এগোবো এবং রডোডেনড্রনের জঙ্গলের কাছে যাব। সেখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবো। আসুন একটু আমরা সঞ্জয়ের সাথে কথা বলে নিই। जी, ये कितने साल से तुम यहाँ पे हो? सर हम लोग बेसिकली जो अभी टूरिज्म का अभी जो स्कोप बढ़ा हुआ है 2018 से चला हुआ है। जब से यहाँ रोड पहुँचे तब से टूरिज्म का स्कोप बढ़ा हुआ है सर। तो हम लोग मैक्सिमम 5-6 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हमारे पास कॉटेजेस, होम स्टेज और सब कुछ अवेलेबल है, और गाइड से लेकर सब कुछ। अगर आप दारा वैली आना चाहें तो प्लीज़ हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 ट्रेल का बात तुमने किया था। यस सर। एक नीचे वाला ट्रेल, एक ये वाला ट्रेल, वो एक बार बता दो सबको। सर यहाँ पर से 2 ट्रेल्स हैं। अगर आपके पास स्टैमिना, अगर आपको ब्यूटी देखनी है, अगर नेचर से आपको प्यार है, तो आप थोड़ा सा ऊपर वाला ट्रेल पकड़िए। वहाँ पर आपको मेडोज मिलेंगे। आपको अगर आप सीजन में आ रहे हो, अगर मई में आ रहे हो, तो आपको रोडोडेंड्रॉन का पूरा वैली दिखेगी। आपको व्यूज़ अच्छे हैं, बुग्याल है, बहुत कुछ है। नीचे वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे वाला में आपको मिलेगा 1.5 किलोमीटर का आपका फॉरेस्ट मिलेगा, फिर बेस कैम्प मिलेगा, फिर आपको बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। नीचे से भी अच्छा, ऊपर से भी अच्छा है, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। बस इतना सा बोलूँगा। अगर आपको करना है, पहले ऊपर वाला ट्रेल कीजिए, फिर वापस आते समय आप नीचे वाला ट्रेल से कीजिए, वो तो दोनों आप लोगों को कवर हो जाएगा सर। तो ये दारा वैली और पंचतुली करने का सबसे बेस्ट टेक्निक और सबसे बेस्ट रास्ता आपका यही रहेगा, अगर आप करना चाहो तो। थैंक यू सचिन। थैंक यू।
तो एक मिनट, आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं नॉर्मली, आप लोगों ने इसका आंसर देना है। और आप लोगों ने ये वैली कैसे देखी, हमारे कॉटेजेस कैसे लगे और मेरी गाइडिंग कैसे, ठीक है। मैं स्टार्ट हो रहा है ना? ओके ओके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द हिमालयन गाइड। मेरा नाम है सचिन दत्ताल और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बंगाल से एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली है। 2 फैमिलीज है हमारे साथ, वो हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं, हमारे कॉटेजेस में रुके हुए हैं। और जो हम ये जो ट्रैक करवा रहे हैं अभी 0 पॉइंट के लिए, एक बार सर लोग से उनका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं हमारे साथ। आज का ट्रैक उनको कैसा लगा? सर एक बार आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे? सर एक बार आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग हिमालयन ब्लू शिप कॉटेज में रुके हैं और अभी 0 पॉइंट जा रहा है। बहुत बढ़िया है। थैंक यू सर। मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रही है, ये ट्रेकिंग भी अच्छी है। मैम 2 शब्द ज़्यादा बोलिए आप। ट्रेल बहुत खूबसूरत है, गाइड बहुत कंफर्टेबल फील करवाया है सबके लिए एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सर आप 4 शब्द बोलिए सर। ये जो ट्रेल है, ये जब स्टार्ट करोगे, जो सचिन ने पहले बताया होगा, अगर नहीं बताया होगा मैं बता दे रहा हूँ, 2 पार्ट है इसका। एक नीचे से जाने वाला रास्ता है, एक ऊपर से जाने वाला रास्ता है। ऊपर वाला रास्ता जो है जो रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट होके जाएगा और बुग्याल भी आएगा सामने। वो रास्ता अगर लोगे तो आप बहुत अच्छी तरह पहुंच पाओगे और सीनिक ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल से ये वाला रास्ता लेने का डिसीजन सचिन का था, जो बहुत बढ़िया था। थैंक्स सचिन फॉर दैट। थैंक আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বুগিয়ালের একটা দিকে। এর সামনে হচ্ছে রডোডেন্ড্রনের বন। এখান থেকে আমরা যাত্রা শুরু করব এবং আমরা রডোডেন্ড্রনটা দেখে আমরা নিচের দিকে যাব পঞ্চচল্লি বেস ক্যাম্পের দিকে। আমরা আবার যাত্রা শুরু করেছিলাম রডোডেন্ড্রনের দিকে এবং আমরা রাস্তায় যেতে যেতে ওই কিছু গাছ দেখতে পেয়েছিলাম। সেই গাছগুলোর ছালে আগে লেখা হতো। এই ছালগুলো সংগ্রহ করে আগে বই, বেদ, উপনিষদ এইসব লেখা হয়েছিল। সেই গাছের পাশে জঙ্গলের পাশ থেকে আমরা যাচ্ছিলাম।
সামনে রয়েছে রডোডেন্ড্রনের এক অসাধারণ বন। সেই বনের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। রডোডেন্ড্রন যে এত সুন্দর হতে পারে এটা ধারণার বাইরে, তবে এটা লাল নয়, এটা পিঙ্ক রডোডেন্ড্রন। এই ফুলটা থেকে কিন্তু বুরাস তৈরি হয় না, মানে যেটা শরবত, এইটার মধ্যে বিষ আছে, সুতরাং এই ফুলটায় অন্য কোনো কাজে ইউজ হয় না, কিন্তু দেখতে অসাধারণ। এই সেই রডোডেন্ড্রনের বন যার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। সামনে বিশাল পঞ্চচল্লী, আর একদিকে সবুজ বন আর একদিকে পিঙ্ক কালারের বন। এই দৃশ্য বোধহয় সচরাচর দেখতে পাওয়া যাবে না। একদিকে রডোডেন্ড্রন আর সামনে বিশাল পঞ্চচল্লী। পঞ্চচল্লীর নামটা পঞ্চচল্লী কেন সেটা বোধহয় সবাই জানেন। এখানে একটা পৌরাণিক কাহিনী যুক্ত আছে। সেই কাহিনীর তার কিছুটা অংশ আমরা শচীনের মুখ থেকেই শুনে নেব। आप लोगों की गाड़ी जो है आपको
मैम आप लोगों को सभी को पता होगा कि हिमालय के निर्माण कैसे हुआ। आज से करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी बन रही थी मैम, कहा यह जाता है कि मैम जो इंडिया का जो पार्ट था पहले वो अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था। पहले अफ्रीका के मतलब अफ्रीका वाले पार्ट से जुड़ा हुआ था। जब टाइटैनिक प्लेट्स खिसके मैम तो अफ्रीका का पार्ट का एक हिस्सा खिसकते आया साउथ एशिया से टकराया मैम। तो टकराने के बाद उसका फोर्स इस लेवल का था कि मैम उसके ऊपर से मलबे बहुत हाईली मलबे निकले मैम। मलबे निकले तो उसी मलबों से जो बना और उसी से जो है हिमालय का निर्माण हुआ मैम। ये हमारी साइंटिस्ट कहते हैं मैम। ठीक है, उसके बाद फिर कई करोड़ों साल मिलियंस ऑफ साल के लिए फिर यहाँ पे हिमयुग आया, फिर बर्फ बनी सर। फिर बर्फ बनने के बाद धीरे धीरे पिघलता गया, फिर क्लाइमेट चेंज होता गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हमारी पृथ्वी बनी जिसमें जीवन यापन हुआ मैम। ये हमारे साइंटिस्ट कहते हैं। और हिमालय का निर्माण जो क्या कहते हैं हुआ था इस तरीके से हुआ था। और दूसरा माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ ये जो हिमालय है मैम हमारे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बेसिकली पंचचूली का मतलब ये है 5 चूल्हे जो पांडवों द्वारा बनाए गए। ठीक है मैम, कहा यह जाता है कि जब पांडव अपने अंतिम समय में थे, मतलब मैम उन्होंने जब अपना युद्ध लड़ा, कौरवों और पांडवों का जो युद्ध हुआ, युद्ध लड़ने के बाद मैम वो ऑब्वियसली मैम पांडव जीत गए थे। जीतने के बाद उन्होंने जिंदगी भर अपना राजपाट किया, अपने बच्चों को सब कुछ सौंपा मैम। कहते हैं कि जब लास्ट टाइम पे जब उन्होंने जब सारी प्रॉपर्टीज जब रिटायर हुए अपने कार्यभार से, तो सारी प्रॉपर्टीज जो अपने बच्चों को सौंपने के बाद वो हिमालय में स्वर्गारोहण के लिए आ गए थे सर। ये बात सभी को पता सर। कहा यह जाता है कि जब स्वर्गारोहण के लिए आए थे, स्वर्गारोहण के लिए वो कहते हैं कि इसी वैली में आए थे वो। सामने आपका आदि कैलाश है, कैलाश मानसरोवर है, ओम पर्वत है, तो बेसिकली ये शिव नगरी में। तो कहा यह जाता है कि मैम जो 5 पांडव भगवान शिव को खोजते हुए इस वैली की ओर आए थे, तो यहाँ पर आते हुए जो उनका धरती में जो उनका लास्ट स्टे था, धरती में जो उनका लास्ट दिन था, उन्होंने अपने चूल्हे बनाए सर। यहाँ पर 5 पांडव। तो बेसिकली पंचचूली का मतलब 5 चूल्हे हैं जो पांडवों द्वारा बनाए गए। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं सर कि ये 5 चूल्हे हैं, 5 भाई थे, एक ही चूल्हे में क्यों नहीं बनाया सर, टाइम बच जाता। 5 ने अलग अलग क्यों बनाया सर? तो उसका बेसिक मेन रीजन ये है सर, जब उन्होंने जब अपना राजपाट त्यागा था, त्यागने के बाद जो हिमालय स्वर्गारोहण के लिए आए थे, तो मैम वो सन्यासी बन गया है। तो सन्यासी जब सन्यासी का काम क्या रहता है मैम, अपना काम स्वयं करना, झाड़ू पोछा बर्तन धोना अपना उनका काम स्वयं करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि 5 चूल्हे बनाने, जो 5 चूल्हे बने थे पांडवों ने अपने चूल्हे बनाए थे। इसका मेन रीज़न ये था कि वो सन्यासी थे। कई लोग कहते हैं कि मैम द्रौपदी ने उनका चूल्हा बनाया मैम, ये गलत है मैम। अगर द्रौपदी ने चूल्हा बनाया होता तो एक ही चूल्हा बनाती मैम, 5 अलग अलग नहीं बनाती। तो बेसिकली मैम द्रौपदी का चूल्हा क्यों नहीं था मैम, तो मैम इसका मेन रीज़न ये है, जब द्रौपदी उनके साथ थी तो द्रौपदी सन्यासी नहीं थी, उन्होंने सन्यास धारण नहीं किया था। तो ऑब्वियसली वो लोग मैम पंचचूली में रहने के बाद 5 पांडवों के साथ मैम थी वो, और तो 5 पांडवों के हस्बैंड से तो किसी के साथ शेयरिंग करके खा सकती थी मैम। तो उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके कहते हैं द्रौपदी का यहाँ पर कोई चूल्हा नहीं है। और दूसरा मैम बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम बड़े बड़े हिमालयस ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, या फेक चीज़ें हैं, ये कहने वाली बात है, ये बस सुनसुनाई बातें हैं, लोग उनको फेक मानते हैं मैम। अगर आप महाभारत में विश्वास करते हैं मैम, अगर आपको महाभारत में बिलीव है तो इसमें भी बिलीव करना पड़ेगा मैम। इसका मेन रीज़न ये है सर, आपको पता होगा कि जब महाभारत काल में एक भीम के शरीर में 10,000 हाथियों का बल हो सकता है। अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मैम उस टाइम के ऐसे वॉरियर्स थे जो मैम कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में मैम क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र जगा सकते थे मैम। ब्रह्मास्त्र मतलब मैम आज के टाइम पे न्यूक्लियर पावर है, मतलब उस टाइम पे ब्रह्मास्त्र की पावर इतनी हुआ करती थी कि मैम पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती थी मैम। इस लेवल का उनके पास पावर था। मानते हो सर इसके ऊपर? अगर वो कुछ मिनट्स में अगर ये पावर्स अगर क्या कहते हैं ये सुपर पावर जगा सकते हैं मैम, तो ये 5 चूल्हे बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो सुपर पावर जग सकते हैं तो ये 5 चूल्हे भी बन सकते हैं मैम। उसके बाद फिर वहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 पांडव तो स्वर्गारोहणी से गए थे, वो तो गढ़वाल में है। आप तो फेक कह रहा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि स्वर्गारोहण के लिए यहाँ से गए थे। हमने ये कहा है कि सर यहाँ पे 5 पांडवों ने अपने भोजन किया था, खाना बनाया था चूल्हे में, खाना बनाने के बाद आगे निकल गए थे। बेसिकली हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पर आपका चमोली और जो क्या कहते हैं पिथौरागढ़ है उसके बॉर्डर में हम लोग। जस्ट एक वैली के बाद आपका चमोली है, चमोली में ही आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ, आपका स्वर्गारोहणी जितने भी पीक्स हैं मैम वो चमोली साइड में है। अब आप एक चीज़ इमेजिन कर सकते हो मैम, जब इतने बड़े बड़े हिमालय और इतने बड़े बड़े चूल्हे बना सकते हैं मैम, तो एक वैली क्रॉस करके स्वर्गारोहणी के लिए भी निकल सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें ये हैं। पंचचूली का मतलब कि 5 चूल्हे हैं जो पांडवों द्वारा बनाए गए हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस पीक का नाम क्या है, इस पीक का नाम क्या है। किसी भी पीक का नाम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मैम। जस्ट आपके सामने आपको पंचचूली है, सामने आदि कैलाश, ब्रह्म पर्वत, फिर उसके बाद प्रॉपर कैलाश, फिर ओम पर्वत, जस्ट इसके बगल में आपका नगलको दिख रहा है मैम। वो नगलको के आपके बाद राजनामा के बाद नंदा देवी। जस्ट इसके आपके लेफ्ट साइड पे हमारा आपका तेलकोटी और आपका हिमक क्या कहते हैं आपका नांगलिंग ग्लेशियर है मैम। तो ये यहाँ की जो पॉपुलर चीज़ है मैम यही है। नंदा देवी की यहाँ से दिखता नहीं है।
आप लोग जस्ट पंचतली के सेंटर, अगर आप इससे भी ज़्यादा हाइट में जाएंगे तो हो सकता है आपको दिख जाए मुक्तेश्वर, एक पॉइंट अनंता देवी दिखने का मैम। लेकिन जो आपको जो हिमालय की रेंज दिखेगी, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको लगता है कि मैम कौन से कोने में मैम, लेकिन जो हिमालय का जो सेंटर है मैम, आपको दिखाने के लिए सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है यही है। और लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है पंचतली के अलावा दूसरा देख पाओ। सबसे बेस्ट व्यू आपको पूरी दुनिया में पंचतली का सबसे बेस्ट पॉइंट है यहीं से है मामू, कहीं से नहीं। अगर आप मुंशियारी जाओगे तो मुंशियारी से आपका मेन होटल से और जो पंचतली का डिस्टेंस है बहुत दूर है। आपका होटल और मुंशियारी यहाँ पे है तो पंचतली मैम बहुत दूर है। आपको लगता है कि हाँ यार पंचतली है, खूबसूरत है, ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है मैम, लेकिन लगता बहुत दूर है। जो व्यू यहाँ से वो कहीं से नहीं है मैम, मैं आपको लिख के देती। तो बेसिकली पंचतली का मतलब 5 चूल्हे जो पांडव द्वारा बनाए गए, इसका ये है। এখান থেকে পঞ্চচল্লির ভিউটা জাস্ট অসাধারণ। একদিকে রডরডেন্ড্রনের বন আর সামনে পঞ্চচল্লির বিশাল। আমরা আরও নিচের দিকে নেমে যাব, ওই বেস ক্যাম্পের দিকে, 0 পয়েন্টের দিকে, যেখান থেকে গ্লেসিয়ারের স্টার্টিং পয়েন্টটা রয়েছে। সেই জন্য আমাদের যাত্রা আমরা আবার শুরু করব।
এখন পঞ্চচল্লির বেস ক্যাম্পে চলে এসেছি, 0 পয়েন্টে। পিছনে পঞ্চচল্লি রেঞ্জ পুরো দেখা যাচ্ছে। এখানে থেকে গ্লেসিয়ারগুলো সব স্টার্ট হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকেই পঞ্চচল্লির সামিট স্টার্ট করা যায়। আমরা এখন আছি ইগলুহাটে। ইগলুহাট KNBN এর প্রপার্টি ছিল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখতেই পাচ্ছেন। এই ইগলুহাট যখন চালু ছিল প্রচুর লোক আসতো এখানে KNBN থেকে বুক করে। এখন ইগলুহাটের অবস্থা দেখাচ্ছি ভেতর থেকে। এরকম ভাঙাচোরা। পরন্ত বিকালে পঞ্চচল্লিশ সূর্যাস্ত আমাদের হোমস্টে থেকে। ধন্যবাদ। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না, এবং এরকম আরও ভিডিও পেতে আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। ধন্যবাদ।